نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک اہم خبر پر۔ صحافیوں کا جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا وقت کی اہم ضرورت۔ محبوب نگر میں TUWJF کے تربیتی اجلاس سے ایم ماجد ریاستی صدر کا خطاب۔ جی ہاں ناظرین، محبوب نگر TUWF کے زیر اہتمام متحدہ ضلع محبوب نگر کے اردو صحافیوں کے لیے ایک تربیتی اجلاس کے KGN فنکشن ہال پدماوتی کالونی میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز سید عظمت علی شاہ ریاستی نائب صدر TUWJF کی خراتی کلام پاک سے ہوا اور محمد جلیل رضا نمائندہ رہنمائی دکن جڑچلا نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اس اجلاس کی صدارت محمد عبدالمجیب اسٹاف رپورٹر روزنامہ سیاست محبوب نگر نے کی، جبکہ بطور مہمان خصوصی ایم ماجد ریاستی صدر TUWJF سید غوث محی الدین، ریاستی سیکریٹری شیخ احمد علی مشیر، محمد امجد علی آرگنائزنگ سیکریٹری، محمد لئیق الدین ایس کی فرحات جوائنٹ سیکریٹری، محمد محسن خازن، محمد واجد حسین آرگنائزنگ سیکریٹری نے شرکت کی۔ سب سے پہلے سید غوث محی الدین ریاستی جنرل سیکریٹری TUWJF نے تربیتی اجلاس کی اہمیت و افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور تنظیم کی خدمات پر رپورٹ پیش کی۔ پہلے سیشن میں اردو صحافیوں کو مسلسل سیکھنا کیوں ضروری ہے کے عنوان پر ایس کی فرحات نے صحافیوں کو مخاطب کیا۔ دوسرے سیشن میں اردو صحافت میں مصنوعی ذہانت کا استعمال کے عنوان پر شیخ احمد علی نے دور حاضر میں صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی اپنانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کے متعلق تفصیلی تربیت دی۔ بعد ازاں منعقدہ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے ایم ماجد ریاستی صدر نے کہا کہ دور حاضر میں اردو صحافیوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اردو صحافت کو درپیش چیلنجز سے کس طرح نمٹنا چاہیے اور اردو اخبارات کی زبوں خالی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ منڈل سطح پر اردو صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن کارڈ فراہم کرنے کے لیے تنظیم کی جانب سے کی جا رہی نمائندگی کے متعلق بھی اظہار خیال کیا۔ اس اجلاس کو سید عظمت علی شاہ ریاستی نائب صدر، عبدالاحد صدیقی صدر ضلع TUWJF، محمد مجاہد صدیقی صدر TUWJF نارائن پیٹ، مولانا عبدالقوی حسامی نمائندہ سیاست مکتل، شیخ عبداللہ سینئر صحافی نے مخاطب کیا، جبکہ اجلاس کی نظامت محمد تقی حسین تقی کوآرڈینیٹر متحدہ ضلع محبوب نگر نے کی۔ آج کے اس اجلاس کے انعقاد میں عبدالاحد صدیقی ضلع صدر، ملا شہاب الدین سیکریٹری، محمد جعفر آرگنائزنگ سیکریٹری، محمد تقی حسین تقی، عبدالعلیم صدیقی جوائنٹ سیکریٹری نے اہم کردار ادا کیا۔ اس تربیتی اجلاس میں متحدہ ضلع محبوب نگر کے 80 صحافیوں نے شرکت کی۔ آخر میں متحدہ ضلع کے سینئر صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی، جس میں قابل ذکر محمد عبدالمجیب، شیخ عبداللہ، ملا شہاب الدین، محمد مقصود محبوب نگر، محمد مجاہد صدیقی، ارشد فیصل، حافظ محمد تقی، محمد عبدالرحیم نارائن پیٹ، مولانا عبدالقوی مکتل، محمد منظور احمد اٹکور، محمد مبین خان، مولانا حافظ عبدالماجد، محمد حسین، محمد ساجد ضلع ناگر کرنول، ملم اسحاق، محمد محبوب ضلع گدوال، محمد واحد ضلع ونپرتی، محمد جلیل رضا، عبدالستار عاشق جڑچلا شامل ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر تربیتی اجلاس میں شریک صحافیوں میں اسنادات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر محبوب نگر ضلع کے ذمہ داران محمد عبدالقیوم حسین، سید اشفاق شاہ، محمد جمیل، محمد معراج، محمد افضل، محمد حسین، شیخ نرنجن، محمد معراج، محمد اکرم، محمد فرحان، محمد اشفاق کے علاوہ دیگر اضلاع سے آئے صحافی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں STR نیوز کی یہ رپورٹ۔ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ آگے بھائی کہاں گے بدل گئے اب آیا جناب محمد حسین صاحب اردو، جناب محمد حسین صاحب اردو، نام پہ میں جناب محمد عبد الصمد صاحب روزہ اگر کچھ نام چھوٹتے بھی ہیں تو ہمیں ماجراؤں میں برابر ہم دیکھو اور
रिपोर्टर हैं। मैं जनाब जलील रजा साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि आगे आ जाए। जलील रजा साहब। इधर ओके राइट मैं शेख निरंजन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम साथी हजरात हमारे आज के इस प्रोग्राम से मुत्तफिक होंगे। अगर किसी को जैसे किसी का नाम रह गया हो तो मैं माजूर रखता हूँ। आइंदा प्रोग्राम में चलिए अब महफिल का अख्ताम होता है। खाने के लिए आप लोगों को मैं जनाब मोहम्मद मकसूद साहब डायरेक्टर सिटी इंडिया ग्रुप से ख्वाहिश करता हूँ कि वो टैक्स जनाब आप लोग वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ज़िला महबूब नगर की जानिब से मुत्तहदा ज़िला के सहाफ़ियों के लिए एक प्रोग्राम हमारे निहायत ही हमदर्द और हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत माजिद साहब के कहने पे थोड़ा सा तरबियती इजलास भी हो जाए और मुत्तहदा ज़िला के सहाफ़ियों से मुलाकात भी हो जाए और इसके साथ साथ आगे जो काम करना है उसके बारे में होने के लिए ये रखा गया है इजलास है। मैं सबसे पहले दहस पे तमाम मौजूद तशरीफ़ फरमा तमाम सीनियर सहाफ़ी और हमारे जनाब एम माजिद साहब, मुजीब साहब, गौस साहब, अब्दुल्ला साहब, मुजाहिद सिद्दीक़ी साहब, अब्दुल कबीर उसामी साहब, अज़मत अली शाह साहब, फराद भाई, अहमद अली भाई, सबका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा। अब ये इजलास एक ऐसा इजलास है जिसमें यह है कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे कौम की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे कौम की, मेरा कलम तो ज़मानत है, मेरा कलम तो मेरी ज़मानत है। एक अहमद फराज का ये शेर जो कभी कभी गूंजता है जहन में, तो अब याद आया तो बोलना पड़ा। तो कलम की ताकत क्या होती है? अब उसमें मसला ये है कि ताकत तो कलम में बहुत है, ताकत तो कलम में बहुत है,
मगर हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे नावाकिफ नाबलद होने की तरफ से और सहाफती तजुर्बे की कमी की वजह से या कुछ अक़दार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं हम में कुछ ना कुछ गलतियाँ हो रही हैं। मुत्तहिदा अज़ला के 5 मुख्तलिफ यूनिट्स से बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ियों का यहाँ एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम रखा गया। तरबियती प्रोग्राम के साथ साथ तंज़ीमी गुफ्तगू भी की गई। दरअसल नई टेक्नोलॉजी के साथ सहाफ़ियों को यानी जर्नलिस्टों को पूरी तरीके से उनको तरबियत फ़राहम करना और उनको नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में सिखाने के लिए तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से एक वफ़द वो उन ट्रेनर के साथ हैदराबाद यहाँ महबूब नगर आया और महबूब नगर में तकरीबन 70 के करीब उर्दू से वाबस्ता सहाफ़ी जो 5 मुत्तहिदा जो अज़ला हैं वो शरीक रहे और उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए जर्नलिज़म को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात जहाँ तक है जर्नलिस्टों में जो नज़्म होना है और जर्नलिस्टों में जिस तरीके से अवाम और हुकूमत के दरमियान, अवाम और सियासी कायदीन के दरमियान एक राब्ता और अपनी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो, अपने क़लम के ज़रिए हो, वो चीज़ों के बारे में बताया गया। और महबूब नगर में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जो हल्का उर्दू से वाबस्ता लोगों का है, उर्दू ज़बान के ज़रिए किस तरीके से उर्दू सहाफ़त के ज़रिए उर्दू ज़बान की तरक्की में रोल अदा किया जा सकता है, उस पर भी बात की गई है। अब जहाँ तक तंज़ीमी मामलात हैं, तंज़ीमी मामलात में देखिए सहाफ़ियों के सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो मसाइल हैं कि उनकी जो मंडल सतह पर जो अक्रेडिटेशन कार्ड की ज़रूरत है। अब देखिए हम हुकूमत से पहले ही हम अर्ज़ी दे चुके हैं और मुझे ये बताया गया है कि जो कमेटी अक्रेडिटेशन रूल बनाने के लिए दी गई थी उसने ये बात वाज़ेह कर दी है कि मंडल सतह पर जब दीगर ज़बानों के अखबारात के नुमाइंदों को मुसल्लिमा हैसियत दी जाती है, अक्रेडिटेशन कार्ड दिया जाता है, तो क्यों उर्दू को महरूम किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है मैं समझता हूँ कि खैर सरकार, हम ये चाहते हैं कि सरकार जो कहती है कि भाई हर एक के साथ हम बराबर का सलूक करते हैं, तो वो हमारी ये जो नुमाइंदगी दी गई है उसको कबूल करेगी। नंबर 2 जहाँ तक है हाउसिंग का मामला है, हाउसिंग के मामले में भी काफ़ी जो है पेशरफ्त हो रही है। फिर कुछ ये बताया जा रहा है कि पता नहीं यहाँ किस नौइयत की जो सूरत हाल है, कुछ लोगों को डबल बेडरूम मकान मिले नहीं मिले, उनके अलाटमेंट का क्या मामला है। तो हम मुकामी यूनिट के साथ रब्ता करते हुए मरकज़ी सतह पर इसके कैसे तरीके से जो है इसकी नुमाइंदगी करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बात जहाँ तक है जो बीमार लोग हो जाते हैं, अब देखिए एक स्कीम चल रही है, हो सकता है कि ये हफ़्ते में सरकार या फिर कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद करेगी कि 10 लाख रुपए तक के इलाज की सहूलतों के बारे में एक जीओ जारी करने की बात की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन आप लोगों का यानी सहाफ़ियों के इत्तेहाद के ज़रिए ये काम कर सकते हैं और मुझे खुशी है कि महबूब नगर के मुत्तहिदा अज़ला से काफ़ी तादाद में हमारे साथी रुजू हुए और ये इन मसाइल पर अक्रेडिटेशन का मामला हो, इम्काना का मामला हो, बच्चों के अहद के बारे में एक बात कही गई कि उर्दू सहाफ़ियों के बच्चे उर्दू नहीं करते। तो मैं हमारे कोर कमेटी के अरकान से जब मैं हैदराबाद वापस हूँगा उनसे ये बात करूँगा कि ऐसे जो सहाफ़ी हैं जिनके बच्चे उर्दू में ख़ासकर SSC में अगर अच्छी नंबरात से पास होते हैं तो उनके लिए कुछ कैश अवार्ड की वो हो, ये तजवीज़ भी जो है मैं लेके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि ये कुछ यहाँ लोगों ने ये बात की है यहाँ इस स्टेज से, तो ये चीज़ भी अच्छी होगी ताकि तरगीब मिल सके। तो इन जो है और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के मुंतज़मीन को कि जिस तरीके से उन्होंने इत्तेहाद के ज़रिए, क्योंकि हमें बड़ी वो उम्मीद थी कि यहाँ अच्छा होगा, काफ़ी देर से हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए कि मिज़दाक़ हम जो है यहाँ प्रोग्राम अच्छा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया।